Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 4 video of natural resource. This is the important series of revision in which you have learned the different kinds of 1 marks, 2 marks and the 3 marks questions regarding the uh, previously asked questions, and it may ask in the upcoming examination tools. All about the revision from MCQs, fill in the blanks and true false type questions regarding the different kinds of lesson is over. In part first video, you have learned the question number 1 to 7. In part second video, you have learned the question number 8 to 18. And in part third video, you have learned the question number 19 to 25. In this video lecture, you will learn the question number 1 to the different other questions that is belong to short answer type. In previously 1 to 4 video, you have learned the very short answer type question. That was actually related to the very short answer type question. From this video onward, you will learn the short answer type question. So be focused. The short answer type question will actually consist the 2 marks, 3 marks or 4 marks question. It may be up to 3 marks questions. So you should focus over the video that begin from for the short answer type questions belong to the natural resource. And the questions that I have collected for you are actually from the different source. It may be from your side book, NCERT exemplars, and many from the different kinds of source, like the different kinds of channels, different kinds of the links. So this is all about important for you. This is all about important for class 9th students. You should focus over the each and every concept at the question number 1 to 10 or question number probably 1 to 8. It may be depend upon the questions complex and questions complexity. So if the questions are not very complex and questions are not any tough, then there is only 1 to 2 minutes need to explain, or questions is tough, then it may take about 5 to 10 minutes in order to explain. So questions, the depending upon the questions type, the video may be too longer or maybe too shorter. The video may consist 5 to 10 marks revision, or video may consist the uh, uh, more than 10 marks question. So without delay timing, lead back over the short answer type question, that is question number 1. Now the short answer type question. In previous video lecture, you have learned the very short answer type question, that is question number 1 to 25. This one was the last question of short answer type question, that is what is greenhouse effect. It was actually the last question regarding that. But now in this video lecture, you will learn the short answer type questions that may probably ask as a 2 marks or 3 marks questions. So without delay timing, let back over the short answer type question. The question is, the atmosphere act as blanket. How? Listen, very important question regarding the short answer type question. Atmosphere act as blanket. How? It was asked in 2012 समेटिव असेसमेंट, एसए सेकेंड. पहले एसए होता था, अब आपके लिए पीए वगैरह होते हैं एग्जामिनेशन. ठीक है. एटमॉस्फियर हाउ एक्ट एज द ब्लैंकेट. एक्चुअली over the earth surface there are a shield of ozone layer. As you all know, there is a shield of ozone layer that act as a blanket for the upcoming harmful UV rays. Not only it prevent you from UV rays, there are so other way by which atmosphere protect you. For example, the earth surface has a thick layer of air, and that air mostly nitrogen and oxygen that act as the insulating agents, so that the atmospheric weather or earth weather as well as the temperature remain optimum. Do you know that the earth, that is the moon temperature or the temperature of Mars and temperature of Venus are actually fluctuated. It may rise up to 121 degree centigrade, and it may down up to minus 157 degree centigrade. Why? Because of having no atmosphere. So atmosphere act as a blanket because it protect you from the harmful UV rays, as well as it create the blanket so that the atmospheric weather condition remain controlled all time. That should be explained in your own language.
नाउ बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, नेम 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच काज द एयर पॉल्यूशन। पूछ रहा है कि ऐसे 4 एक्टिविटीज का नाम बताए जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। क्लियर है? एयर पॉल्यूशन किन 4 वजहों से होता है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो माइनिंग से, कोल माइनिंग हुआ, वहाँ से एयर पॉल्यूटेंट्स जो है कार्बन ऐश के फॉर्म में निकलते हैं और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कार्बन डस्ट के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लिखना है। जो व्हीकल से पॉल्यूशन निकलते हैं इससे भी हमको सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलते हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स का सबसे जो खतरनाक सोर्स बोला जाएगा वो थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 4 एक्टिविटीज़ पूछा है, चारों को मैंने मेंशन कर दिया है। आप चाहे तो और भी सारा लिख सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से भी सीमेंट वगैरह यूज हो रहा है, घर गिर रहा है, घर बन रहा है, तो उससे भी जो है क्या फैलता है? एयर पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पूछा गया था? समेटिव असेसमेंट 2013 सेकेंड पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेम द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स विच आर अफेक्टेड बाई चेंजेज इन टेम्परेचर। कह रहा है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो लाइफ साइकिल, उनकी जो लाइफ साइकिल है कौन से स्टेज में, यानी वो बर्थ से लेकर के सेनेसेंस यानी ओल्ड एज तक कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। तो उनके जो लार्वल स्टेज है ना, उनका जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज, इसको टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, लार्वल स्टेज। ठीक है, एग स्टेज, एग और स्पर्म को भी ये टेम्परेचर जो है ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों भाई? एग एक्चुअल में मोस्टली जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सब के सब जो है मोस्टली वो सब क्या होते हैं, वो सब जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टाइप उसमें होता है, एक्सटर्नल टाइप फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो है, मेल जो रहता है वो स्पर्म जो है रिलीज आउट कर देता है एक्वाटिक बॉडी में, और जो फीमेल रहती है वो ओवा रिलीज कर देती है एक्वाटिक बॉडी में। तो ये टेम्परेचर अगर बदल गया तो स्पर्म और ओवा दोनों डैमेज हो जाएंगे और फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कौन से स्टेज ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? गैमेट स्टेज और लार्वल स्टेज। ये गैमेटिक स्टेज है और ये लार्वल स्टेज है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दैट में अफेक्टेड आर द लार्वल स्टेज and the gametic stage. Gametic stage are the egg and sperm. Now back to next question, question number 4. How do sun and wind influence the formation of soil? Listen carefully, it is very important question and many time it was revised. It was actually not revised during the class, there was actually very long video regarding that and it was actually explained very deep. कैसे wind और sun ये दोनों explain करना कि ये दोनों कैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पीडोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? पीडोजिनेसिस। और पीडोजिनेसिस में सनलाइट का क्या रोल होता है उसको बता दें। जैसे आपके ये मान लो कि ये रॉक है, सपोज दैट ये रॉक है, ठीक है, इससे क्या बनना है? सॉइल बनना है। तो रॉक का पहले डिग्रेडेशन होना है। रॉक पहले क्या होता है? डिग्रेड होता है। तो होता क्या? सबसे पहले सनलाइट जब इस पर एक्सपोज होती है, सनलाइट जब इस पर एक्सपोज होती है तो ये पहले तो हीट होता है। ठीक है, ये पहले हीट होता है, हीट। उसके बाद एयर के इफेक्ट से या वाटर के इफेक्ट से फिर क्या होता है? कूल होता है। कोई भी चीज़ जब इमिडिएटली हीट या कूल होती है ना तो वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो फिर ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं? ये छोटे छोटे पीसेस में ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यही आपको जानना है कि ये ब्रेक होने के बाद से ही इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो ही ब्रेक होती है तुरंत ही ये, अब इसके बाद सैंड में, फिर जो है
सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉइल फॉर्मेशन में किसका, सनलाइट का। अब आते हैं सॉइल फॉर्मेशन में विंड का क्या रोल होता है। लिसन, सॉइल फॉर्मेशन में विंड का क्या रोल होता है, इसको समझना है, इसको जानना है। सॉइल है ये, सपोज दैट यहाँ पे सॉइल में बना दे रहा हूँ, सपोज दैट ये रॉक है या सॉइल है, ठीक है, सॉइल ही बना दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रॉक है और सॉइल मान लो, ठीक है, रॉक मान लो, रॉक है, इस पे विंड कहीं से इफेक्ट कर रहा है, कहीं से विंड आकर के इस पे बार बार जो है टकरा रहा है, तो धीरे धीरे इसका अपर लेयर जो होगा ना, अपर लेयर, ठीक है, इसका जो अपर लेयर होगा वो अपर लेयर डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अपर लेयर जब डिग्रेड होगा तो वो दूसरे किसी प्लेस में उड़ के जाएगा, ये दूसरे किसी प्लेस में उड़ के जाएगा, जो क्या बनाएगा, सैंड, और सैंड फिर क्या बना लेगा, सॉइल बना लेगा। सो लिखेंगे कॉपी में, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस स्ट्रोक ऑफ विंड ओवर द रॉक सरफेस the upper layer of rock surface get erode or get eradicate or corrode, get eradicate or get corrode, so that the continuous upper layer get degrade and mix up with the sand and later responsible for the soil formation। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने पूरा पढ़ लिया है। अब आते हैं, ये भी कब पूछा है, ये पूछा है एसए सेकेंड यानी समेटिव असेसमेंट सेकेंड 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेदरिंग, वेदरिंग को डिफाइन कर रहा है, राइट द डिफरेंट मीन्स विच काजेज वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग क्या होता है भाई, देखो रॉक पे डिफरेंट वेदर, रॉक है ये क्या रॉक, रॉक पे डिफरेंट वेदर अगर अटैक कर रहे हैं, वेदर का मतलब क्या होगा, डिफरेंट सीजन, रॉक पे जो डिफरेंट वेदर है, जैसे मान लो कि कूल एटमॉस्फियर है, हॉट एटमॉस्फियर है, रैन है, ठीक है, या कोई भी बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर जिससे रॉक जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, सैंड में, और सैंड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉइल में, तो इसको बोलते हैं वेदरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेदरिंग का, ठीक है। सो वेदरिंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू सॉइल, दैट इज नोन एज द वेदरिंग, एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजिनेसिस। अब ये कैसे बन रहा है कोई मतलब नहीं, रॉक से बन रहा है या कैसे बन रहा है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पीडोजिनेसिस है, एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक। क्वेश्चन आगे पूछा, राइट द डिफरेंट मीन्स विच काज वेदरिंग, वेदरिंग मे बी the any biological factors, weathering causes by any biological factors, weathering may also caused by any physical factor, listen, weathering may also caused by any physical factors, or weathering also may caused by the any chemical factors, so weathering get affected by any abiotic or biotic factors। सो बायोटिक फैक्टर्स में कौन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, लाइकेन, बायोटिक फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइकेन, और लाइकेन क्या करता है, कोई ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करता है, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करता है, जिससे अपर लेयर पूरा रॉक का क्या हो जाता है, डिग्रेड होता है, चाहे वो विंड से डिग्रेड हो, चाहे सन से डिग्रेड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड से डिग्रेड हो, डिग्रेड होना ही उसके लिए सॉइल, सैंड और सॉइल में कन्वर्जन का एक मेन सोर्स हो जाता है, मेन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अगर वो डिग्रेड ना हो तो वो कभी भी सैंड या सॉइल में कन्वर्ट नहीं होगा। यहीं पे तुमको फोकस करना है और यहीं से तुमको अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो डिग्रेड कैसे हो रहा है, यहाँ पे डिग्रेड लाइकेन के थ्रू हो रहा है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर अभी पढ़ा था, क्या क्या, विंड एंड सन, और केमिकल फैक्टर जो है कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स, लाइकेन ही नहीं, ऑटोमेटिकली, जैसे एसिड रेन, मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से कभी कभी सॉइल जो है, रॉक जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, तो केमिकल फैक्टर्स है। तो ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर लाइकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको सक्सेशन बोलते हैं, लेकिन ये हायर क्लास में है। फिलहाल आप यही जानेंगे वेदरिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ रॉक इनटू सैंड एंड सॉइल, there is known as the weathering, and what are the different means that cause weathering is biological factor, example lichen, physical factor, example wind and sun, and chemical factor the acid present in
द डिफरेंट सोर्स लाइक एसिड रैन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन व्हाट बेसिस इज द टाइप ऑफ सॉइल डिसाइडेड। कह रहा है कि सॉइल के कंपोजिशन को लिखिए और सॉइल का कौन सा, सॉइल का जो बेसिस है, टाइप है, सॉइल का टाइप जो हम डिसाइड करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे सॉइल को हम अलग अलग टाइप्स के नाम से जानते हैं, माने क्या क्राइटेरिया बताते हैं। तो सॉइल के कंपोजिशन में मैंने क्या बताया था? सॉइल बेसिकली मेड अप बाई द ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। The organic matter are basically humus. It is the dead and decomposed organic matter present in soil. And inorganic matter like the salt, minerals, sand, silt, air, water, etc. That was over. Now on what basis is the type of soil decided, यानी सॉइल का जो बेसिस है वो उसका क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली द सॉइल टाइप इज डिसाइडेड बाय द एवरेज सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल टाइप इज डिसाइडेड, you should note down, decided by average soil particles present in soil. So you should note down the important concept that actually assign for this answer for this question. Keep in mind, it may be asked on what basis is the type of soil decided. Soil decided by the soil type decided by the average soil particles present in soil. Now the question number 7, what are the consequence of global warming। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कॉन्सिक्वेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑनलाइन क्लास में पूछे भी थे, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस क्या है मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग रीच अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, दैट इज अबाउट 10 years or 100 years, and this may increase the overall, the global warming increase the overall temperature of earth. It responsible for abnormal weather. It also responsible for the melting of polar ice. लगातार अगर पोलर आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा? राइजिंग इन सी लेवल। ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस। जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होता है? अचानक से लोग घर से बाहर निकलते हैं और आँख से कभी कभी दिखाई नहीं देता है। ये सब काज है ग्लोबल वार्मिंग का। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लाइव सेशन में इस क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, सारे क्वेश्चन को चाहे देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट है। ये पूछा है एसए सेकेंड 2012 में, ये पूछा है एसए सेकेंड 2013 में। तो प्रीवियसली आज क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व रहे और आपको डाउट न रहे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ 1 to 7 तक ही हम सॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स को ले रहे हैं। इकट्ठे 1 to 10 को अगर मैं ले लूँगा तो आप एक दिन में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टर्म्स को मैं ले रहा हूँ और आप कॉपी में सबका आंसर लिख डालेंगे अच्छे से।
ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लाइव क्लास में या यूट्यूब वीडियो लेक्चर में स्पेलिंग या किसी भी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है तो वहीं यूट्यूब वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इसको आप हमको अवेयर कराएंगे ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वीडियो नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दैट इज़ वीडियो नंबर 5 में क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड short answer type question. For this video you need to make the notes in your own copy. Thank you.